اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی معاشی ترقی کے لیے یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گلگت بلتستان کی معاشی ترقی کے لیے ایک اہم خبر سامنے آئی کہ گلگت تاور روڈ منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ نئی شاہراہ کے گلگت بلتستان منی مرگ، گریز اور وادی نیلم کو بھی لائے گی۔ منصوبے سے سفری سہولتیں، تجارت اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، جبکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی معاشی ترقی کے لیے اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ گلگت تاوبٹ روڈ منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ نئی شاہراہ سے گلگت بلتستان منی مرگ اور گریز اور وادی نیلم کو ملائے گی۔ منصوبے سے سفری سہولتیں، تجارت اور سیاحت کو فروغ ملے گا، جبکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ فی الحال ہندوستان کی دہشت گرد لائبہ نذر سے اہل خانہ نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ تربت کے رہائشی نذر محمد کے مطابق ان کی بیٹی 8 جولائی کو گھر سے نکلی، جس کے بعد سے اس کا رابطہ منقطع ہوا۔ والد کا کہنا ہے کہ لائبہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پائی گئی تو خاندان کا اس فعل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تعلق نیست اگر یہ چوک غلطی کار اختیار کو من سارے عام اعلان کرنے گاؤں من یہ چوک گمت دست داوانی من نزدیک ہے چوک مورتی نام نظر محمد ہیں اقصد شی محافظر نندوک ہوں من چوک کے نام لائبہ نظر من نیم کا لوگ اچھے درد کا وزیر اعظم کی ہدایت پر ایس آئی ایف سی ریگولیٹری اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے سرگرم ہے۔ اصلاحات کے تحت غیر ضروری قواعد اور پیچیدہ تقاضے ختم کیے جا رہے ہیں۔ اقدامات سے لائسنسنگ کا عمل سہل، دفتری رکاوٹیں کم اور کاروباری اداروں کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایس آئی ایف سی ریگولیٹری اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے سرگرم ہے۔ اصلاحات کے تحت غیر ضروری قواعد اور پیچیدہ تقاضے بھی ختم کیے جا رہے ہیں۔ اقدامات سے لائسنسنگ کا عمل سہل، دفتری رکاوٹیں کم اور کاروباری اداروں کے اخراجات میں کمی آئے گی۔ ایس آئی ایف سی کے مطابق اصلاحات سے سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایس آئی ایف سی ریگولیٹری اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے سرگرم ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے دیر بالا سے، جہاں بارش کے باعث رابطہ سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی ہے اور ایسے میں مسافر اور مقامی شہری متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مقامی افراد نے سڑک کو فوری طور پر کھولنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دیر بالا میں بارش کے باعث رابطہ سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ ایسے میں مسافر اور مقامی شہری متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ مقامی افراد نے سڑک فوری طور پر کھولنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دیر بالا میں بارش کے باعث رابطہ سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی۔ ایسے میں مسافر اور مقامی شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں گھریلو ناچاکی پر بیوی کا تشدد کا نشانہ بنانے اور زبردستی بال کاٹنے والا شوہر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بیوی کو زبردستی تشدد کا نشانہ بنایا اور بال بھی کاٹے۔ خاتون کے 15 پر کال پر ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن نے فوری کارروائی کی، جس پر ڈی پی او سیالکوٹ کے حکم پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بات کریں گے ہائی پروفائل کیس کی۔ میر رضا قتل کیس میں تحقیقاتی ٹیم نے آخری 12 گھنٹوں کی ٹائم لائن مرتب کر لی ہے۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق میر رضا آخری لمحات تک قرض اور سرمایہ کاری کے حصول کی کوششوں میں مصروف رہا۔ احمد راجہ سے 70 سے 80 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر ملاقات ہوئی۔ بینک نے بہن کے نام پر 1 کروڑ روپے قرض منظور ہونے کی اطلاع دی۔ رات 12 بجے میر رضا نے سارم سے 3 کروڑ روپے قرض مانگا۔ میر رضا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کر دیے تھے۔ نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس میں اہم پیش رفت، تفتیشی ٹیم نے تحقیقات تیز کر دی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے آخری 12 گھنٹوں کی ٹائم لائن مرتب کر لی۔ ذرائع کے مطابق میر رضا آخری لمحات تک قرض اور سرمایہ کاری کے حصول کی کوششوں میں مصروف رہا۔ احمد راجہ سے 70 سے 80 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر ملاقات ہوئی۔ بینک نے بہن کے نام 1 کروڑ روپے قرض منظور ہونے کی اطلاع دی۔
रात 12 बजे मीर रजा ने सारिम से 3 करोड़ रुपए कर्ज मांगा और अगली सुबह को इंतहाई मुश्किल करार दिया। रात 2:23 पर इंस्टाग्राम जबकि 2:42 पर फेसबुक, लिंक्डइन और स्नैपचैट अकाउंट्स बंद किए। रात 3:10 पर मंगेतर की मुतादिद कॉल्स और पैगामात का जवाब भी नहीं दिया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत का मामला हल ना हो सका। सिंध पुलिस की तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार है। 25 रोज बाद भी तहकीकात में कोई अहम कामयाबी ना मिल सकी। मकतूल की बहन ने दावा किया कि खानदान को फराहम की गई सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की गुत्थी न सुलझ सकी। किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, कहां कत्ल किया, 25 रोज बाद भी खोज न लगाई जा सकी। DIG आमिर फारूकी ने मीर रजा के आखिरी लम्हात की वीडियो जारी करने का अंदिया दिया, लेकिन ताहाल वीडियो सामने न आई। पुलिस के पास फुटेज मौजूद थी तो शेयर क्यों नहीं की गई? मकतूल के अहले खाना ने एतराज उठा दिया। खानदान को फराहम सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। मशकूक गाड़ियां हमारा पीछा करती रहीं। मीर रजा की बहन का दावा, Our car was followed today and we were discussing on the way only कि हमें हमारी रिक्वेस्ट पे एक अदद सिक्योरिटी अलॉट हुई थी बाय द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और वो रोज आ रही थी, बट सिंस येस्टरडे दैट पुलिस इज नॉट हियर एंड हम यही बात कर रहे थे कि वी विल कॉल इन द मॉर्निंग एंड कंप्लेन कि विदाउट एनी नोटिस सिक्योरिटी यहाँ से क्यों चली गई है। तहकीकाती टीम ने पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद से मुलाकात की। डॉक्टर समिया ने कब्र कुशाई के दौरान हासिल होने वाले शवाहिद, पोस्टमार्टम और लेबॉर्टरी रिपोर्ट्स के नताइज से आगाह किया। मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा का मोबाइल फोन भी फॉरेंसिक के लिए तहवील में लिया जा चुका है। टेक्सिला में टिकटॉकर शमशू बीबी का कत्ल, जिरगे का फैसला निकला। बाप और भाइयों ने कत्ल की मंजूरी दी। जिरगा दीर में हुआ। गैरत के नाम पर कत्ल का टास्क 2 कजन्स को दिया गया। वालिद और दोनों शूटर समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि दीगर शरीक जुर्म अफराद को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। टेक्सिला में टिकटॉकर शमसू बीबी और आयशा के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। खातून को जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर में हुए जरगे में शमसू बीबी के वालिद और 6 भाइयों ने भी शिरकत की। जरगे ने खातून की टिकटॉक वीडियोस को गैरत का मामला करार देते हुए लड़की के कत्ल का हुक्म जारी किया। वारदात की मनसूबाबंदी में वालिद भी शरीक था। SSP रावलपिंडी तारिक महबूब के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस वालिद, फायरिंग में मुलव्विस दोनों कजन्स और 3 दीगर अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। 5 गिरफ्तार हैं और मज़ीद किरदार जो इसके शूटर जो है ना, एक उनमें से दोनों गिरफ्तार हैं, बट जो फर्दर मौजूद है अभी एक और जिसका नाम आ रहा है उसके पीछे हम लगे हुए हैं। शमसू बीबी को 14 अगस्त 2026 को टेक्सिला में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वाक़े के बाद बाप ने कत्ल का इल्जाम 2 अफराद पर आयद किया और दावा किया कि वो उनकी बेटी को माली लेन देन के हवाले से धमकियां दे रहे थे और उनकी फोन कॉल के बाद बेटी घर से निकली जिसे फायरिंग का निशाना बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक बाप और दीगर खानदान वालों को लड़की की वीडियोज पर एतराज था, जिसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद मुंतकिल हुई थी। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश में नफाइज सामने आ गए हैं। 2021 में दर्ज 3 मुकदमात में दरख्शां पुलिस की जानिब से पेश अबूरी चालान डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दिए। सरकारी वकील के मुताबिक पिंकी तीनों मुकदमात में इश्तिहारी थी। हर मुकदमे में एक शरीक मुलजिम भी था जो बरी हो चुके। एतराज़ उठाया कि अबूरी चालानों में पिंकी के इश्तिहारी होने और मुलजिमान की बरियत का जिक्र नहीं है। सिंध पुलिस की फॉरेंसिक डिवीज़न में गोलियों के खौल का जदीद साइंसी तजिया करने वाली IBIS मशीन 2023 से बंद है। ऑस्ट्रेलवी कंपनी से मुआहिदा ख़त्म होने और अदायगी के मसाइल के बायस जदीद निज़ाम गैर फ़ाल है। पुलिस की फॉरेंसिक डिवीजन में जदीद तरीन बैलिस्टिक मशीन 3 साल से बंद। गोलियों के खोल का तज्जिया करने वाला निज़ाम गैर फाल होने से तफ्तीशी अमल मुतासिर। अहम कत्ल केसेस में फॉरेंसिक शवाहिद की जरूरत के बावजूद मशीन की बहाली ताहाल न हो सकी। टॉप ऑफ द लाइन इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसे मुख्तसर IBIS कहा जाता है, 2023 से गैर फाल है। ज़राए के मुताबिक मशीन के लिए ऑस्ट्रेलवी कंपनी से किया गया मुआहदा भी इसी साल खत्म हो गया था। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत सिंध पुलिस की जानिब से ऑस्ट्रेलवी कंपनी को 11 करोड़ रुपए की रकम अदा नहीं की गई। कंपनी को अदायगी का तरीकाकार तवील होने के बायस कागजी कार्रवाई में इतना वक्त लगता है कि माली साल ही खत्म हो जाता है। फॉरेंसिक ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस के पास ऑस्ट्रेलवी कंपनी को अदायगी के लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट भी मौजूद नहीं। यही इंतजामी और माली मसाइल जदीद मशीन की बहाली में रुकावट बन रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कराची के
दो अहम मुकदमात मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और मीर रजा कत्ल केस में भी फॉरेंसिक शवाहिद इंतहाई अहम हैं। ताहम इसके बावजूद फॉरेंसिक यूनिट की जदीद IBIS मशीन ताहाल बहाल नहीं की जा सकी। जदीद फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी की अदम दस्तियाबी जराइम की तफ्तीश में ताखीर का सबब बन रही है। सवाल ये है कि अहम मुकदमात की साइंसी शवाहिद की जरूरत के बावजूद सिंध पुलिस की IBIS मशीन कब दोबारा फाल होगी। बानी PTI का तिब्बी मुआयना शफाफ तरीके से कराया गया। इलाज मुआलजे से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। बानी की बहन और शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पहले दिन से यही मौक़िफ़ है, सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी जब खुद वज़ीर आज़म थे तो लोगों को सेहत पर तंज करते थे। आज अल्लाह ताला के फजल से अगर हम हुकूमत में हैं, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। जब तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी और उनके लीडरान और उनके अपने चेयरमैन उस वक्त के वो बयानबाजी करते थे, वो रोज़ एक ना एक वीडियो जारी करते थे और वो सेहत के हवाले से हमारे सियासी लीडरान की तस्दीक करते थे। हम तब भी उनसे मुल्तमस थे कि ये सेहत का मामला किसी के साथ भी हो सकता है, तो इस पर सियासत करने से गुरेज किया जाए। हमारा जो मौक़िफ़ है उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। हमारा कल भी यही मौक़िफ़ था, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है और हमारा आइंदा कल भी यही मौक़िफ़ रहेगा कि सेहत के मामलात के अंदर सियासत को मुलविस नहीं करना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत दानियाल चौधरी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI अपनी हरकत से मुल्क व कौम की बदनामी का बायस बन रहे हैं। उनकी सियासत का महवर और मरकज़ उनकी अपनी ज़ात है। मज़ीद कहा कि जिसके लिए वो मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा अपनाने से भी दरेग नहीं करते। पार्टी वर्कर्स ने उनकी अंधाधुंध तकलीद और पैरवी से मामलात को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद बेलचक रवैया मसाइल की जड़ है। सियासत का महवर लोगों को चलाना नहीं, उनकी सियासत का जो न्यूक्लियस है वो झूठ के ऊपर मबनी है, लोगों में तफरीक और आग लगाने के ऊपर मबनी है। और इसलिए ये बहुत बुरी तरह जब ये बयानिया ये आज इस पॉइंट पे जब ये सामने आया है तो ये इनको बहुत बुरी तरह और एक्सपोज किया कि पाकिस्तान की आवाम के सामने भी आया कि किस तरह ये झूठ के ऊपर मबनी सियासत करते हैं, इदारों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत के बीज बोते हैं। और वो करते इसलिए हैं कि उनके पास अपनी कोई बात करने के लिए नहीं है। तामीर हो, तरक्की हो, अवाम की बात हो, ना इनके पास करने के लिए है, ना इन्होंने की है और ना इनका सियासत जो है इस चीज़ के ऊपर इवॉल्व करती है।